So today we'll be dealing with section 300 of the CRPC. So far you people have understood that a prosecution has been lodged, the trial has been done, the various situations that may arise during the trial. You have completed all that. But now another situation that arises after trial is, let us suppose you want to lodge a prosecution again on the same facts. Then what is that situation? How does CRPC deals with those situations? This is what we need to dwell upon today. So our first consideration, the answer to this question, that what will happen once the trial has been done and the judgment has been given and after sentence has been had. So is there a bar to trial on the same offence, on the same facts or not? This question is answered under section 300 of the CRPC, which contains the doctrine of autre fois acquit and autre fois convict. Keep in mind that there is a substantial difference between the doctrine of autre fois convict and autre fois acquit and Article 20, Clause 2 of the Constitution. That is the right against double jeopardy. Although both of them act in tandem, they act together, but the realms of two laws are different. If you read Article 20, Clause 2, you will notice that punished, a same person cannot be punished for the same offence if he has been convicted in a previous trial. That is the essence of Article 20, Clause 2. But whether the trial can be had on the same facts or not. So you know that if the trial commences, the person has to remain as an under trial person. Such person may go under trial imprisonment. Such person may suffer various vices of criminal law which he need not have suffered. Article 22 is only confined till the places of where the person has been previously convicted and punished. Then on the same facts, he will not be convicted and punished again. But what if he has been previously acquitted? Then can you try him again and again till he is convicted? The answer is no. And that is what the doctrine of autre fois acquit and autre fois convict contains. It bars the trial on the same facts and on the same offence. Alright. So Article 20, Clause 2 is confined to the realms of punishment and conviction. But Section 300 of the CRPC bars the trial itself. Alright, on the same fact, in regards to the same offence, against the same person. In a way, it is similar to the rule of res judicata in civil trials. So first, for the sake of convenience, I will read section 300 and tell you what you need to mark in it. Person once convicted or acquitted not to be tried for the same offence. This is where the doctrine of autre fois acquit and autre fois and autre fois convict is contained. So whenever a question comes in preliminary examination that where such doctrine is contained, then your answer should be section 300 only. So subsection 1 says of section 300, a person who has once been tried by a court of competent jurisdiction. This is an ingredient. The court which has tried it should be competent. Alright. And what is competence? That he has the power to try such offence. Let us suppose a magistrate tries a case triable by a sessions trial and he records an order for conviction or acquittal. Can a retrial be had? Of course it can be had, because such court was not competent to try such offence. But where a sessions court tries an offence, in those situations, of course, retrial will be barred for the same offence on the same facts, because sessions trial is capable of handling those situations and it is capable to try offence. It has the competence. But the magistrate does not have the competence to try the cases which are triable by the sessions court. So keep in mind that the competence of the court is a very essential ingredient for the bar of section 300 to be applicable. Be very sure of that. A person who has once been tried by the court of competent jurisdiction. So trial is an essential condition and competent jurisdiction is an essential condition. For an offence and convicted or acquitted. So convicted or acquitted are the key words also. Of such offence shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offence
nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 221, or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof. So if you remember, section 221 was about where it is doubtful that on the given set of facts which of the offences can the accused be convicted of. So keep in mind that section. I have already told you and explained all of you about that. So section 300 subsection 1 is saying that even the trial of those offences which could have been used to convict the accused under 221 cannot be had. Alright, तो मतलब इन हिंदी में आपको समझा देता हूँ आराम से कि अगर 221 में आपको पता होगा कि जज के पास कई फैक्ट्स होते हैं और उसको डाउट होता है कि इसमें थेफ्ट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या क्या है, और तो फिर मान लीजिए उनमें से एक ही फैक्ट वो एक ही चार्ज रिकॉर्ड करता है और फिर उसी चार्ज पे जब फैक्ट्स इमर्ज करते हैं तो उसको पता चलता है थेफ्ट नहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ 221 वो कन्विक्ट कर सकता है. बट एक बार उसने मान लीजिए 221 में उसके पास कई ऑप्शन थे, कई ऑफेंसेस बन रहे थे, पर उसने सिर्फ थेफ्ट का कन्विक्शन किया. तो एक बार जजमेंट साइन हो गया और सेंटेंस पास हो गया तो सेम फैक्ट्स पे सेम ऑफेंस के लिए आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लॉज नहीं कर सकते बिकॉज यू हैड दैट ऑप्शन अंडर 221. तो सेक्शन 300 का सब सेक्शन 1 उस प्रोविजन को एक्सप्रेसली बार करता है कि अ जज कैन नॉट रिजॉर्ट टू दैट सेक्शन आफ्टर द ट्रायल हैज बीन कंप्लीटेड. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 2. A person acquitted or convicted of any offence may be afterwards tried with the consent of the state government for any distinct offence. देखिए कीवर्ड है distinct offence, सेम ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, distinct offence की बात कर रहे हैं. For any distinct offence for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of 220. तो 220 में आपको पता है जब एक ही ट्रांजैक्शन में कई ऑफेंस हुए होते हैं तो उसके लिए एक वाल्व ओपन किया है लेजिस्लेचर ने, लेकिन उस पर एक राइडर ये लगा दिया है कि ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना मैंडेटरी होगी. ऑलराइट, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है. एक्सप्लेनेशन में जो आपको इसमें जो नुआंसेस हैं लॉ के, दैट इज इशू एस्टॉपल एंड एक्सप्लेनिंग टू यू हाउ इट रिलेट्स टू authorized acquit, authorized convict, and the position of double jeopardy under Article 20 Clause 2. Subsection 300 का क्या कहता है? A person convicted for any offence by any act causing consequence which together with such act constitute a different offence from that of which he was convicted may be afterwards tried for such last mentioned offence if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time he was convicted. तो consequence had not happened और not known are the keywords. अब मैं आपको एक illustration देता हूँ जिससे आप समझिए. अब मान लीजिए किसी ने attempt to murder किया था एक victim पे, accused का trial होता है और जो victim होता है आफ्टर द ट्रायल हैज बीन डन ही सकम्स टू हिज इंजरीज, मर जाता है. तो लेजिस्लेचर ने सेक्शन 300 का सबसेक्शन 3 में वो क्या कहते हैं वैल्व खुला रखा है इस बात पे. उसने सीधा बोल दिया है कि अगर ऐसा कॉन्सिक्वेंस होता है ऐसी एक्ट का तो उस पर आप ट्रायल कर सकते. तो इस केस में जो मैंने डिसीजन दिया इस पर ट्रायल किस चीज का करेंगे? इस पर ट्रायल मर्डर का होगा. तो अगर अटेम्प्ट टू मर्डर था और आफ्टर द ट्रायल जो विक्टिम था वो विक्टिम मर गया तो 302 ऑफ द आईपीसी का ट्रायल बार्ड नहीं है. और ध्यान रखिए जब आप चार्ज बनाते हैं तो आप उस सेक्शन का यूज करते हैं जिसमें ऑफेंस पनिशेबल है. मर्डर डिफाइंड 300 में है लेकिन मर्डर का पनिशमेंट 302 में है. सो यू टॉक अबाउट 302. ठीक है. सो इलस्ट्रेशन के सेक के लिए मर्डर का ट्रायल हो सकता है even though original trial was on the same facts और attempt to murder का
ट्रायल कंप्लीट हो चुका था। सो अगर कॉन्सिक्वेंस जो उस इंजरीज का हुआ, कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे यही हुआ कि जो इंजरीज जो उसने कॉज की थी एक्यूज ने, दोज इंजरीज eventually made the accused, those injuries eventually made the victim succumb to his injuries, है ना, उसकी वजह से वो मर गया। और चूंकि वो मर गया तो ऐसे केस में 302 का ट्रायल बार्ड नहीं होता है, ठीक है। एंड द एक्यूज कैन बी ट्राइड फॉर द ऑफेंसेस अंडर 302 notwithstanding the bar under section 300। तो यही वो कॉन्सिक्वेंस की बात करता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हुए उसके आगे। तो अगर मान लीजिए कोई भी है, कॉन्सिक्वेंस उसके बाद होते हैं। मान लीजिए आपने किसी टेररिस्ट को गिरफ्तार किया और कंस्पिरेसी फॉर कॉजिंग अ टेरर अटैक और कंस्पिरेसी फॉर बॉम्बिंग अ प्लेस, लेट अस सपोज। तो उस सिचुएशन में आपने तो ओरिजिनली कंस्पिरेसी के लिए उसको गिरफ्तार किया था, बाद में वो टेरर अटैक सच में कैरिड आउट हो जाता है एंड यू गेट टू नो कि अक्यूज्ड उसमें इन्वॉल्व था पूरी तरीके से। सो इन दिस सिचुएशन ये जो कॉन्सिक्वेंस है ना, इस कॉन्सिक्वेंस के लिए आप ट्राई उसे कर सकते हो। द कॉन्सिक्वेंस इज व्हाट? द टेरर अटैक हैज बीन कॉज्ड। तो ऐसे में यूएपीए और बाकी जितने भी टेररिस्ट एक्ट्स हैं और आईपीसी के जितने सेक्शंस है रेलेवेंट, वो सारे लगेंगे, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, एसेट्रा एसेट्रा। तो उनके लिए ट्रायल बार्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है वो कॉन्सिक्वेंस बाद में हुआ है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि जहां पे कोर्ट को कॉन्सिक्वेंस पता ही ना हो, इट वॉज नॉट नोन टू द कोर्ट टू हैव हैपेंड। तो नोन टू द कोर्ट टू हैव हैपेंड का एक इलस्ट्रेशन आपको लेजिस्लेचर भी देता है। एक मैं आपको सिंप्लिसिटी से एक के लिए देता हूं कि मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है रॉबरी का ऑफेंस, उसको लगता है कि इसमें कोई कुछ ज्यादा नहीं है, एंड में पता चलता है कॉन्सिक्वेंस है कि नहीं ये रॉबरी नहीं थी, ये डकैती थी। तो ऐसे केस में डकैती पे सेम फैक्ट्स पे रीट्रायल हो सकता है और सेशंस कोर्ट में ट्रायल होगा। फिर वो वहां पे ऑट्रोफाइस एक्विट या ऑट्रोफाइस कन्विक्ट का डिफेंस नहीं ले सकते कि मैं एक बार कन्विक्ट हो चुका हूं तो मुझे सेम फैक्ट्स पे रीट्रायल नहीं किया जाए। सेशंस कोर्ट कह देगा नो, दिस कॉन्सिक्वेंस was not known to the court below, hence the bar under section 300 does not apply, ठीक है। So you must be very sure कि जो कोर्ट ट्राई कर रहा था उसको कॉन्सिक्वेंस की नॉलेज थी या तब तक कॉन्सिक्वेंस हुए थे या नहीं, ये भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और अगर जहां पाया गया कि कॉन्सिक्वेंस की नॉलेज नहीं थी कोर्ट को या तब तक कॉन्सिक्वेंस नहीं हुए थे तो वहां पे सेक्शन 300 का बार इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ वी कम टू द सबसेक्शन 4। A person acquitted or convicted of any offense constituted by any acts may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with and tried for any other offense constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged। तो अगर प्रीवियस कोर्ट उन सिचुएशंस पे ट्राई नहीं कर सकता था, लेट अस सपोज एक केस में बहुत सारे ऑफेंसेस बनते हैं, मान लीजिए थेफ्ट और थेफ्ट का बना, रॉबरी का बना, डकैती का बना और मर्डर का भी बना। तो अगर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली पूरा का पूरा केस सेशंस कोर्ट को सबमिट होगा, कमिट हो जाएगा, लेकिन एक थ्योरेटिकल एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि मान लीजिए जो आपका वो है मैजिस्ट्रेट थेफ्ट को तो ट्राई कर सकता है, रॉबरी का भी ऑफेंस ट्राई कर सकता है। तो अगर इन दोनों केसेस में वो उन दोनों को ट्राई कर सकता है तो वो सेम फैक्ट्स को डिटरमाइन करेगा। तो फिर वो लोग ये बात का डिफेंस नहीं ले सकते क्योंकि मुझे लोअर कोर्ट ने सेम फैक्ट्स पर ट्राई कर लिया है तो मुझे हायर कोर्ट सेम फैक्ट्स पर ट्राई नहीं कर सकता, बिकॉज जो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है वो डकैती और मर्डर के ऑफेंसेस को ट्राई करने में कॉम्पिटेंट नहीं है। एंड इफ यू रिमेंबर, for the bar under section 300 subsection 1 to be applicable, the competency of the court is a very relevant criteria, and since it is not there, the legislature is basically explaining कि अगर मान लीजिए ऐसा डिवीजन किया है किसी कोर्ट ने तो वो भी इतना मटेरियल नहीं होगा, सेम फैक्ट्स पे ट्रायल हो सकता है अगर वो केस सबसेक्शन 4 ऑफ 300 में फॉल करता है, ठीक है। Now we come to the next situation जो next subsection 5 बताता है। वो कहता है a person discharged under 258 shall not be tried again for the same offense except with the consent of the court
by which he was discharged, or by any other court to which the such person, to which the first mentioned court is subordinate. तो जो 258 की सिचुएशन है जहाँ पे यू रिमेम्बर कि ऑर्डर ऑफ स्टॉपेज फॉर फर्दर प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट देता है, तो वहाँ पे एक सेफ्टी वैल्व क्रिएट किया है सेक्शन 300 में कि अगर ऐसा पर्सन डिस्चार्ज हो गया है तो कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी उसको दोबारा ट्रायल करने के लिए। मैंने आपको याद होगा बताया था कि डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस होता है और वो बहुत क्रूशियल डिफरेंस है। डिस्चार्ज आपका चार्ज फ्रेमिंग से पहले होगा, जब एक्विटल या कन्विक्शन होता है तो पूरा एविडेंस की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है, ये देखा जाता है कि कौन सा एविडेंस रिलायंस के काबिल है, कौन सा एविडेंस रिलायंस के काबिल नहीं है, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, और कौन से फैक्ट्स प्रूव हो रहे हैं, कौन से फैक्ट्स प्रूव नहीं हो रहे। तो ट्रायल बहुत डिटेल्ड होता है। तो दैट इज वाई सेक्शन 300 प्राइमरली ट्रायल पे अप्लाई करता है, डिस्चार्ज पे नहीं अप्लाई करता है। ऑल राइट, सो कीप दिस इन माइंड, सेक्शन 300 अप्लाइज ऑन ट्रायल, इट डज नॉट अप्लाई ऑन डिस्चार्ज, एक्सेप्ट ये जो एक स्पेशल सिचुएशन सेक्शन 300 के सबसेक्शन 5 में दी है, एंड इट इज ओनली फॉर द पर्पस कि ये उन पर्सन्स के लिए है वो हैज बीन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258, सिर्फ उन्हीं के लिए है, उनके बाहर किसी के लिए नहीं है। सो लेट अस सपोज इफ अ पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 239 ऑफ द CRPC or a person who has been discharged under 245 of the CRPC or 227 of the CRPC, he cannot claim benefit of authorized convict or he cannot claim benefit of subsection 5 of section 300, उसके लिए applicable नहीं है। And if you remember, order of stoppage further proceeding सिर्फ summon cases पे लगता है, ठीक है? So keep this difference in mind. Discharge and trial are not the same thing. 300 is applicable ऑन ट्रायल ओनली, और ट्रायल जब कंक्लूड हो जाता है तो जब प्रोसिक्यूशन सेम फैक्ट्स पे चीजों को ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो सक्सीड नहीं करेगा अनलेस द केस फॉल्स विद इन दी एक्सेप्शंस जो इस सेक्शन में है, ठीक है? अब सब सेक्शन 6 इसका एक बात कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट और ऑफ सेक्शन 188 ऑफ दिस कोड। तो जो 188 है जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन में अभी डिस्कस करूंगा क्योंकि वो इशू एस्टॉपल और आर्टिकल 20 के साथ आपको समझाना है, लेकिन एज फार एज 188 ऑफ द CRPC इज कंसर्न, 188 में वही एविडेंस रिकॉर्ड होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिबिट्स लाती है और वो ऑफेंस बाहर हुआ है और बाहर की कंट्री के ऑफेंस अब इंडिया में ट्राई हो रहे हैं, तो उसके लिए जो एग्जिबिट जो बाहर की इंक्वायरी से लाए गए तो उसी के लिए एक सेविंग क्लॉज है, दैट इज इट। फिर एक्सप्लेनेशन, डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट और डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। हाँ ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज ओनली। अब इलस्ट्रेशन एक पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये इलस्ट्रेशन प्रीलिम्स के एग्जाम्स में या आप अगर थ्योरेटिकल स्टेट्स में पेपर दे रहे हैं तो एज इट इज आ जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन इज, द फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज, A is tried upon a charge of theft as a servant and acquitted. He cannot afterwards, while the acquittal remains in force, be charged with theft as a servant or upon the same facts with theft simply or with the criminal breach of trust. Same facts पे उसको इन सारी चीजों के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता। Now एक चीज आपको समझा देता हूँ, ये एक्विटल रिमेन्स इन फोर्स का क्या मतलब है। देखिए, रिमेन्स इन फोर्स का बेसिकली ये मतलब है कि मान लीजिए एपेलेट कोर्ट ने ट्रायल को किसी इरेगुलरिटी की वजह से सेट असाइड कर दिया और रीट्रायल का ऑर्डर दे दिया, तो फिर 300 का बार काम नहीं करेगा। तभी वो कह रहा है कि इफ द एक्विटल और सच कन्विक्शन रिमेन्स इन फोर्स, अगर एक्विटल फोर्स में है, प्रभाव में है, तो वो तभी तक प्रभाव में रहता है जब तक किसी एपेलेट कोर्ट ने उसको सेट असाइड नहीं कर दिया है, ठीक है? अगर एपेलेट कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है तो बार नहीं अप्लाई करेगा 300 का। ऑलराइट, तभी द लेजिस्लेचर ने ये वर्ड यूज करने का यही रीजन है कि वो प्रिस्क्राइब करना चाहता है कि अगर एपेलेट कोर्ट ने या रिविजनल कोर्ट ने इफ इट सेट असाइड योर ट्रायल देन यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 300। नाउ आई कम टू इलस्ट्रेशन बी। A is tried for causing grievous hurt and convicted. The person injured afterward dies. A may be tried again for culpable homicide. ये consequence जो हुआ है ये उसका illustration है, all right? यही जो consequence की जो बात की गई है subsection 3 under section 300, ये उसी का provision है। फिर C में क्या आता है?
A is charged before the court of session and convicted of culpable homicide of B. A may not afterwards be tried on the same facts for the murder of B. अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आपको पता होना चाहिए all culpable homicides are murder. Sorry, सारी मर्डर्स के अंदर कल्पेबल होमिसाइड्स के पूरे इंग्रेडिएंट होने चाहिए. मर्डर इज अ ग्रेवर फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. तो ये तो टॉपिक प्राइमरली आईपीसी का है. इट इज प्राइमरली द टॉपिक ऑफ आईपीसी जो सीआरपीसी के बाद में टेकअप करूंगा. तो अगर ये आपको नहीं समझ में आया सो यू वेट टिल आई कंप्लीट द कल्पेबल होमिसाइड और द मर्डर टॉपिक, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने गया तो लेक्चर विल लूज इट्स ट्रैजेक्टरी. ठीक है, बेसिकली यू नो दिस. सारे मर्डर्स में कल्पेबल होमिसाइड्स का इंग्रेडिएंट होता है. कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस ऑफ विच मर्डर इज अ स्पीशी. ये बात याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, बहुत काम आएगी. ए डी पे आते हैं इलस्ट्रेशन पे. ए इज चार्ज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू बी. ए मे नॉट आफ्टरवर्ड्स बी ट्राइड फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट to be on the same facts unless the case comes within subsection 3. तो subsection 3 में अगर consequence हुए हैं तो ही ट्राई किया जा सकता है, वरना सेम पर्सन को दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता. ये भी कॉन्सिक्वेंस का ही इलस्ट्रेशन है और ये दो इलस्ट्रेशंस को कंबाइन करता है. ये सेक्शन 300 के 1 के को लेके इलस्ट्रेशन देता है और एक सेविंग क्लॉज उसी को बताता है सबसेक्शन 3 के लिए. ये सारे इलस्ट्रेशन आपको प्रीलिम्स में एज इट इज आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके बारे में है, तो सो दैट यू कैन पिक अप द राइट ऑप्शन. E कहता है A is charged by the magistrate of second class with and convicted by him of theft of the property from the person of B. A may be subsequently be charged with and tried for robbery on the same facts. Answer is the same because the second class magistrate is not competent to try robbery. The first class magistrate and above may try, but the second class magistrate is not competent to try it. So in those situation, आपका जो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट है वो अगर थेफ्ट के लिए कन्विक्ट कर देता है तो आप जान लीजिए कि रॉबरी के लिए भी ट्रायल हो सकता है. दिस इशू, ये जो इलस्ट्रेशन है ये रिलेट करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट से. इसीलिए मैंने आपको कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट मार्क करवाया था कि नो कि व्हाई द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट इज वेरी एसेंशियल. फिर एफ पे आते हैं. ए, बी एंड सी आर चार्ज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास with and convicted by him of robbing D. A, B and C may be afterwards charged with and tried for डकैती on the same facts. इसका भी आंसर सेम है. क्यों मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेशंस ट्रायल पे हो सकता है? क्योंकि डकैती इज नॉट ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, इट इज ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. ऑलराइट, देन अगेन दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंस. तो ये तो हो गया कि सेक्शन की रीडिंग क्या है. नाउ आई टेल यू कि इश्यू एस्टॉपल क्या होता है. देयर इज एन इश्यू ऑफ इश्यू एस्टॉपल एज वेल. देखिए सिंपल भाषा में, लेमेन्स टर्म में, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एन इश्यू एस्टॉपल, तो ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए एक क्रिमिनल ट्रायल में 10 फैक्ट आते हैं, वो 10 फैक्ट पे 10 इश्यू बनते हैं. तो एक इश्यू जब प्रॉपरली प्रूव हो गया या डिस्प्रूव हो गया ट्रायल के दौरान, तो दूसरे केस में सेम इशू को रीओपन करना अलाउड नहीं है. दैट इज व्हाट इश्यू एस्टॉपल इज. द सेम थिंग, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इश्यू एस्टॉपल. सो ये लेमन्स टर्म में था. अब इश्यू एस्टॉपल और कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल में थोड़ा डिफरेंस होता है, और ऑट्रोफाइज एक्विट और ऑट्रोफाइज कन्विक्ट और डबल जियोपैटी में डिफरेंस होता है. तो इश्यू एस्टॉपल और ऑट्रोफाइज एक्विट और डबल जियोपैटी का डिफरेंस एग्जाम के पर्पज से काफी रेलेवेंट है. तो सिंपल सी ये बात जान लीजिए कि इश्यूज पे अप्लाई करता है इश्यू एस्टॉपल. ऑट्रोफाइज एक्विट और ऑट्रोफाइज कन्विक्ट तो आपके ट्रायल के बाद काम करते हैं, और ट्रायल को ही बार कर देता है ऑट्रोफाइज एक्विट और ऑट्रोफाइज कन्विक्ट की डॉक्ट्रिन जो सेक्शन 300 में कंटेन्ड है. लेकिन जो इश्यू एस्टॉपल है वो इश्यूज को रोकता है. अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं. 2 केस हैं सेम पर्सन के खिलाफ. ए के खिलाफ 2 केसेस हैं.
एक आर्म्स एक्ट में है और एक मर्डर केस है सेशंस ट्रायल के सामने, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन में मर्डर केस पहले ट्राई हो रहा है और उसमें इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एक इशू बनाया गया सेशन जज के सामने। सेशन जज ने एक फाइंडिंग की कि जो आर्म्स था वो इलीगल नहीं था, जो गन उसके पास थी वो इलीगल नहीं थी, वो वैलिड थी। अब जो इशू पे जो फाइंडिंग हुई है ना, तो अब जो दूसरा केस जो आर्म्स एक्ट पे ट्राई हो रहा था उसमें मान लीजिए प्रोसिक्यूशन फिर से यही इशू उठाता है कि जो आर्म्स इनके पास थे वो इलीगल थे। तो यहां पे जो डिफेंस है वो इशू एस्टॉपेल का बेनिफिट ले सकता है और सीधे बोल सकता है कि ये इशू तो इस केस में ट्राई हो चुका था जो सेम ट्रांजैक्शन और फैक्ट से रिलेट करता है और फाइंडिंग हमारे फेवर में थी। तो यहां पे इशू एस्टॉपेल का बार लग जाएगा एंड द प्रोसिक्यूशन विल नॉट बी अलाउड टू रीओपन द सेम इशू विच हैज बीन ट्राइड अर्लियर, जो इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स था, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन से इसको ऐसा समझिए। फिर मैं आपको, क्योंकि लीगल डेफिनेशन भी आपको नरेट करवानी है और बाकी भी चीजें नरेट करवानी है, तो मैं आपको पहले लीगल डेफिनेशन बता देता हूं कि द प्रिंसिपल ऑफ इशू एस्टॉपेल is different from double jeopardy or authorized acquit or authorized convict. This principle applies where an issue of fact has been tried by a competent court on a former occasion and the finding has been reached in the favor of an accused. Such finding would then constitute an estoppel or res judicata against a prosecution, but it would not operate as a bar to trial and conviction of the accused for a different or distinct offense. It would only preclude the reception of evidence that will disturb the finding of fact already recorded when the accused is tried subsequently, even for a different offense. All right, एक बात याद रखिएगा, ये जो इश्यू एस्टॉपेल है ये इश्यूज तक ही कन्फाइंड होता है, ये रीट्रायल बार नहीं करता। ऑट्रोफाइज अक्विट और सेक्शन 300 में जो डॉक्ट्रिन है ऑट्रोफाइज कन्विक्ट की और सेक्शन 300 की, ये ट्रायल बार करते हैं, पर इश्यू एस्टॉपेल ट्रायल नहीं बार करता। वो उस फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जो एक बार सेटल हो चुकी है उसको दोबारा अनसेटल नहीं करने देता, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द लैंड। तो ये क्रिमिनल ट्रायल्स पे भी इसका प्रभाव रहता है, ये क्रिमिनल ट्रायल्स में भी कई बार एक्सटेंड होता है। ऐसा मत समझ लीजिए कि रेस जुडिकाटा क्रिमिनल ट्रायल्स पे नहीं अप्लाई करता है, इट डज अप्लाई एंड आई विल गिव यू द केस लॉज जो इससे रिलेट करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन आपको समझ में आ गया कि सेम फैक्ट पे जब मैंने जो इलस्ट्रेशन दिया था कि ए के पास इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स था, तो मर्डर ट्रायल भी उस पे इनिशिएट हुआ और आर्म्स एक्ट में भी ट्रायल इनिशिएट हुआ। तो अगर प्रोसिक्यूशन ने एक बार पहले ट्रायल में फाइंडिंग ऑफ फैक्ट पा लिया कि भाई वो इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म नहीं था, तो दूसरे ट्रायल पे भी सेम फैक्ट्स पे वो इस इशू को रीओपन नहीं कर सकता, क्योंकि इश्यू एस्टॉपेल लग जाता है। तो ये इश्यू एस्टॉपेल है। ये जनरली क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए या अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में अगर आपने केस फाइल पढ़ी और केस फाइल में पाया कि हाँ प्रीवियस केस में जो सेम फैक्ट पे एस्टैब्लिश था उसी पे ये फाइंडिंग रिकॉर्ड हो चुकी है, तो सेम फैक्ट्स पे दोबारा ये इशू रीओपन नहीं हो सकता ये। लेकिन इश्यू एस्टॉपेल कहां तक कन्फाइंड है? इशू तक कन्फाइंड है। इट इज नॉट, इट डज नॉट बार अ रीट्रायल, इट बार्स एन इशू, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि what is the difference between an issue estoppel and authorized acquit and authorized convict, so you have the answer. The former bars an issue, the authorized acquit and authorized convict bars a trial, ठीक है। फर्दर आपको एक लीगल डेफिनेशन देता हूं। The rule of issue estoppel prevents relitigation of an issue which has been determined in a criminal trial between the parties, if with respect to an offense arising out of same transaction a trial has taken place and the accused has been acquitted.
then the another trial with respect to the offence alleged to arise out of same transaction, which requires the court to arrive at a conclusion inconsistent with the conclusion reached at the earlier trial, is prohibited by the rule of issue estoppel. Finding of an issue से ही relate करता है. In order to invoke the rule of issue estoppel, not only the parties in the two trials should be the same, ये पहला ingredient है, ध्यान रखिएगा, but also the fact in issue, proved or not, as present in the earlier trial, must be identical to what is sought to be re-agitated in the subsequent trial. अगर किसी ने भी मेरी CPC की क्लास ली होगी तो उसको ये रेस जुडिकाटा से बड़ा सिमिलर लग रहा होगा, बिकॉज सेम प्रिंसिपल इश्यू एस्टॉपल के भी लग रहे हैं. इश्यू एस्टॉपल इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ रूल ऑफ रेस जुडिकाटा. और ध्यान रखिएगा, रेस जुडिकाटा इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ एस्टॉपल. उसको कहते हैं एस्टॉपल बाय जजमेंट और एस्टॉपल बाय अकॉर्ड. ठीक है. इफ द कॉज ऑफ एक्शन वॉज डिटरमाइंड टू एग्जिस्ट, कंटिन्यूइंग विद द definition, if the cause of action was determined to exist and the judgment was given on it, the same is said to be merged in the judgment. If it was determined not to exist, the unsuccessful plaintiff can no longer assert that it does. He is estopped per res judicatum. ये जो मैं बोल रहा हूं, it is basing on the judgment of the Supreme Court in Ravinder Singh versus Sukhbir Singh, 11 जनवरी 2013 को ये डिसाइड हुआ. ठीक है. तो इसमें इश्यू एस्टॉपल के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, कैसे आप एजिटेट करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया. अब इस पे कुछ इंग्लिश केसेस भी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, पर इट इज नेसेसरी फॉर योर नॉलेज कि आप जानें, जिससे आप डॉक्ट्रिन को पूरे अच्छे से समझ पाएं. तो इसी प्रिंसिपल ने किंग वर्सेस विल्स्ली में बोला था कि इश्यू एस्टॉपल इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑट्रोफाइस एक्विट एंड ऑट्रोफाइस कन्विक्ट. These pleas, which are concerned with the judicial determination of an alleged criminal liability, and in case of a conviction with the substitution of a new liability, issue estoppel is concerned with the judicial establishment of a proposition of law or fact between the parties. It depends on a well-known doctrine which controls the relitigation of issues which are settled by prior litigation. So basically, जो English judges ने जो elaboration दिया है, ये मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि जो इशू आपने पहले सेम फैक्ट्स पे डिटरमाइन हो चुका है, अब दोबारा उसको रीएजिटेट नहीं कर सकते. इशू की बात कर रहे हैं, ट्रायल की बात नहीं कर रहे. ट्रायल की जब हम बात करेंगे तो ऑट्रोफाइस एक्विट और ऑट्रोफाइस कन्विक्ट की बात आएगी, पर इशू की बात करेंगे. जो फाइंडिंग्स हैं, क्रिमिनल ट्रायल में इशू होता है, इश्यूज पे एविडेंस के बेसिस पे फाइंडिंग्स होती हैं, तो वो जो फाइंडिंग जिसने कंक्लूजन रीच कर लिया है उसको रीएजिटेट नहीं किया जा सकता. सेम इशू कैन नॉट बी रीएजिटेटेड. इसी को कहते हैं इशू एस्टॉपल. अब इस पे कई केस दिए हैं जिसको एक्सटेंशन से भी कंपेयर किया गया है, जैसे मर्ज वर्सेस क्वीन 1956 का केस है. द लॉ विच गिव इफेक्ट्स टू द इशू एस्टॉपल इज नॉट कंसर्न्ड विद द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग विच अमाउंट्स टू एन एस्टॉपल, still less with the processes of the reasoning by which the finding was reached in fact. It is enough that an issue or issues have been directly raised and found. Once that is done, then so long as the finding stands, if there by any subsequent litigation between the same parties, no allegations legally inconsistent with the finding that has been recorded in a previous case can be reagitated. Res judicata pro veritate exceptor is the rule, and this applies in the pleas of the crown. Crown का मतलब वहाँ पे state होता है, तो ये हमारे यहाँ भी state से ही compare होगा. Always remember, ये जो English judgments जो है ना, ये इंडिया में approved है. I'll tell you the case. ये जो laws है ना, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, अभी मैं next आपको बताऊंगा, ब्राउन वर्सेस रॉबिन्सन, जितने भी मैंने आपको केस लॉ बताए इंग्लिश जजेस के, क्या कहते हैं, किंग वर्सेस विल्केसी, मार्स वर्सेस क्वीन, हैरन वर्सेस मैगवायर जस्टिस का जो ब्राउन वर्सेस रॉबिन्सन में रेशियो है, ये प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस थॉकचॉम बेरा सिंह के जजमेंट्स में अप्रूव हुआ है. इट इज द लॉ ऑफ द लैंड एज वेल. तभी इट इज नेसेसरी फॉर यू टू नो कि ये प्लीज क्या है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इंडिया में से अप्रूव किया है
तो उन्हीं के जजमेंट से आप समझेंगे प्लीज है क्या एक्चुअली में. सो नेक्स्ट वी कम टू ब्राउन वर्सेस रॉबिन्सन. इट सेज before issue estoppel can succeed in a case such as this. उन्होंने अपने केस की बात कर रहे थे. There must be prior proceeding determined against the crown necessarily involving an issue which again arises in a subsequent proceeding by the crown against the same prisoner. It depends upon an issue or issues having been distinctly raised and found in the former proceeding. एग्जाम के पर्पस में ध्यान रखिएगा, यू डू नॉट नीड टू राइट इन सच फ्लोरिडिटी. इंग्लिश जजेस की फ्लोरिडिटी की कोई जरूरत नहीं है आपको फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन. यू कैन राइट वेरी सिंपली, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट. योर पॉइंट शुड बी honed in. The examiner who is checking your answer sheet should be very sure that you have successfully proved your point. वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इंग्लिश जजेस का अगर वर्बैटम यूज करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे. हाँ, who are practicing lawyers, they need to use this fluidity because it is very effective inside the courtroom. The judges are enchanted by the fluidity of your argument, so you need to make sure that you have the fluidity and the legal skill and the capacity to actually say this before the court in the 30 seconds or 2 minutes that the high court provides you. all right, high court में कभी मत समझिएगा बहुत लंबा टाइम मिलता है, 30 सेकंड से 2 मिनट मिलते हैं बस. तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ व्हाट इज द टेस्ट टू डिसाइड. ये आप लिखेंगे. The essentials for the rule of issue estoppel are: the parties in the two proceedings must be the same. The issue that was decided in the earlier proceeding must be identical with the issue which is sought to be re-agitated. The issue estoppel applies only when both earlier and the present proceedings are criminal prosecutions. All right. So where an issue has been decided by a competent court on a former occasion, such a finding constitutes an estoppel or res judicata against the parties to that proceeding. It will operate as a bar to reception of evidence to disturb that finding in a subsequent trial or proceedings. The principle is known as rule of estoppel. Where an issue of fact has been determined by the competent court on a former occasion in the favor of an accused, such finding operates as estoppel or extension of res judicata against the prosecution. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन दी है उसको रेस जुडिकाटा के रूल का एक्सटेंशन ही माना है. एंड ऑलवेज रिमेंबर रेस जुडिकाटा आल्सो बिलोंग्स टू अ ब्रांच ऑफ एस्टॉपल. ठीक है. तो अब कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल और इश्यू एस्टॉपल में क्या डिफरेंस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में जान लीजिए कि द प्रिंसिपल ऑफ इश्यू एस्टॉपल इन अ क्रिमिनल ट्रायल observes that where an issue of fact has been tried by a competent court on an earlier occasion and a finding has been recorded in the favor of the accused, such finding would constitute an estoppel or res judicata against the prosecution, not as a bar for trial and conviction of the accused for a distinct or different offence, but as precluding the acceptance or reception of evidence to disturb the finding of fact when the accused is tried subsequently for a different offence. तो ये तो already आपको समझ में आ गया है. This rule is distinct from the doctrine of double jeopardy as it does not prevent the trial of any offence but only precludes the evidence being led to prove a fact in issue as regards which evidence has already been led and a specific finding has been recorded at an earlier criminal trial. Thus the rule relates only to the admissibility of evidence which is designated to upset a finding recorded by a competent court in a previous trial on a factual issue. तो ये जो cause issue estoppel का rule है, ये admissibility of the evidence को से relate करता है. It does not at all, किसी भी हाल में it does not bar a retrial. ये बस same issue को reopen करने को prohibit करता है, चाहे सेम ऑफेंस पे हो चाहे वो डिस्टिंक्ट ऑफेंस पे हो. ऑलराइट. ये लॉ भी अप्रूव कर दिया गया था इंडिया में प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, और मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस थॉकचॉम बेरा सिंह, इसमें भी अप्रूव किया गया. एज लेटेस्ट भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार में भी ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ अप्रूव किया गया.
So now I have to tell you the ratio of the judgment of Hope Plantations Limited versus Taluk Land Board. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत elaborately एक definition दी थी जो how to differentiate between the issue estoppel and cause of action estoppel, and it approved the ratio of Arnold and others versus National Westminster Bank, which was decided by the House of Lords. ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का फिर डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव की, आई जस्ट टेल यू राइट नाउ कि अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल एंड इश्यू एस्टॉपल इज दिस दैट द कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल अराइजेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन इन द लैटर प्रोसीडिंग्स, द लैटर हैविंग बीन बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर प्राइवीज एंड हैविंग इन्वॉल्व्ड द सेम सब्जेक्ट मैटर. On those situation, cause of action estoppel arises. In such a case, the bar is absolute in relation to all the points decided unless fraud or collusion is alleged, such as to justify the setting aside earlier judgment. If you remember, fraud or collusion India में भी ground है, it set aside all the judgment. If you refer to section 44 of the Indian Evidence Act, then it will be very clear. और civil law का जब मैंने क्लास ली थी तो foreign judgment में मैंने बहुत elaborate किया था कि why fraud and collusion vitiates all the Solomon proceedings that goes on into a judicial law, a judgment को लेके. So primarily cause of action पे बोलता है कि in such case the bar is absolute अगर उन सारे points पे decide किया है, लेकिन when there is a discovery of a new factual matter जो parties reasonable diligence के बाद भी earlier नहीं ला सकती थी, तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग्स रीओपन हो सकती हैं. ये सिचुएशन उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, कॉज ऑफ क्या कहते हैं, इश्यू एस्टॉपल में. इश्यू एस्टॉपल में चाहे आपने गलत जजमेंट दिया हो चाहे आपने सही जजमेंट दिया हो, पर कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल में अगर आपके पास एक ऐसा फैक्चुअल मैटर आ गया है जो आप रीजनेबल डिलीजेंस से पहले भी प्रूव ना कर पाते, तो प्रोसीडिंग्स को रीओपन किया जा सकता है. यही एक प्राइमरी डिफरेंस है कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल और इश्यू एस्टॉपल में. इश्यू एस्टॉपल में तो ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट कंसिडर्ड. वो क्या, एक बार क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में फाइंडिंग ऑफ फैक्ट आ गई, इश्यू डिसाइड हो गया, फाइंडिंग इज डिसाइडेड, नाउ यू कैन डू नथिंग, अब कुछ नहीं हो सकता. इट इज वेरी सिंपल. बट कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल ये बेसिकली सिविल लॉ का रेलम है. ये एग्जाम के पर्पज से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सारे एस्टॉपल्स अभी से समझ में आ गए ना, तो एविडेंस और सीपीसी बहुत आसान हो जाएगा. सीपीसी में समझने वाले पॉइंट्स इन्हीं में आते हैं, और आप ये देख रहे हैं सीआरपीसी में भी हैं, सीआरपीसी में भी हैं ऑब्वियसली. सो बेसिकली ये एक प्राइमरी डिफरेंस है कि कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल में न्यू फैक्चुअल मैटर जो रीजनेबल डिलीजेंस से आप ना ला सकते, उससे क्या कहते हैं, ट्रायल रीओपन हो सकता है. दैट इज नॉट द केस इन द इश्यू एस्टॉपल. कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल में न्यू डिस्कवरी ऑफ अ न्यू important matter which could not have been found with reasonable diligence is a relevant ground for reopening the proceedings, not so in the case of issue estoppel. ठीक है, और issue estoppel ध्यान रखिएगा इश्यूज तक सीमित है, वो ट्रायल को नहीं बार करता. अगर सेम इश्यूज एजिटेट करने की कोशिश करेंगे तो एज अ डिफेंस यू कैन टेक दिस इश्यू कि इश्यू एस्टॉपल से बार्ड है. और अगर आप जज हैं एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस पोजिशन, सो यू कैन ऑलवेज से कि प्रोसिक्यूशन this issue has already been decided, so we cannot reopen it again on the ground of issue estoppel. जब ये सारे ग्राउंड आपको पता होते हैं ना, अपने आप से आप डील करते हैं एज अ मैजिस्ट्रेट, तो हाई कोर्ट बहुत खुश होता है. हाई कोर्ट आपकी एसीआर इतनी अच्छी बनाएगा कि वो कहेगा कि यार इतना यंग मैजिस्ट्रेट है, उसको इतना पता है, तो यंग मैजिस्ट्रेट को बहुत रिवॉर्ड करेगा. वो कहेगा कि आप हायर पोजीशन में जाओ और बाकी मैजिस्ट्रेट को भी ट्रेन करो, ये सारी चीजें बताओ, तो आपकी एसीआर भी अच्छी बनेगी. एज अ लॉयर आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा हाई कोर्ट दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस पोजीशन. तो जब तक आपके पास पढ़ने का टाइम है ना, तो अभी ही पढ़ लीजिए आप ये सारी चीजें, क्योंकि आगे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे या आप जब बाहर निकल जाएंगे फील्ड में, तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब आपके दिमाग में पैसा होता है और अर्निंग की टेंशन होती है. तो अभी जब तक आप पढ़ रहे हैं, तो अब तब तक आप शांत दिमाग से पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आप सब कुछ ग्रास्प कर पाए. और जब आप ग्रास्प कर लेंगे तो ये एक ही बार समझने की बात है. लॉ फिर आप देखेंगे ऐसे ही चल रहा है. मैं एक जजमेंट बता रहा हूँ, आज से 10 साल बाद जो भी जजमेंट आएगा वो सेम चीज बताएगा आपको. अब आप देखिए ये जजमेंट्स कब के हैं, कोई 1954 का है, कोई 1956 का है, लेकिन
till 2005 भी और as late as 2020 में भी सेम ग्राउंड्स आ रहे हैं, सेम चीजें रेज हो रही हैं। तो एक बार आपने समझ लिया, आपकी आगे की भी फुर्सत हो जाती है। तो दिस इज वेरी एसेंशियल कि आप ये अभी से समझ लें, क्योंकि अभी आपके पास पढ़ने का टाइम है। इट इज अ लग्जरी, इसको वेस्ट मत करिएगा। ये यू आर वेरी, क्या कहते हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव बीन अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस मच। तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ योर फॉर्च्यून, एंड दोज हु डू नॉट मेक यूज ऑफ फॉर्च्यून, then the fortune frowns upon them, and I don't want कि आप फील्ड में निकल जाएं पर आपको ऐसी चीजें ना ध्यान में हो, इसलिए मैं आपको अभी से समझाए दे रहा हूँ। ये इश्यू एस्टॉपल और कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल का डिफरेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इश्यू एस्टॉपल और ऑट्रोफाइज क्विटर, ऑट्रोफाइज कन्विक्ट की डॉक्ट्रिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल में और इसमें क्या डिफरेंस है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या आई डोंट थिंक एनी जुडिशियल सर्विस आज दिस क्वेश्चन। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगी इश्यू एस्टॉपल क्या होता है, और ये फिर पूछ लेगी कि ऑट्रोफाइज एक्विट क्या होता है। तो ऑट्रोफाइज एक्विट और कन्विक्ट तो आप सीधे सेक्शन 300 का वर्बैटिम बता सकते हैं। इश्यू एस्टॉपल अगर आपको नहीं पता तो आप गड़बड़ कर देंगे, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो मैं एक्स्ट्रा बता सकता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ आपको। देन अगेन नाउ आई विल गो फर्दर। There are 4 situations wherein second proceedings between the same parties, the doctrine of estoppel per rem judicatum may be invoked. तो क्या है? पहला है cause of action estoppel, where the entirety of the decided cause of action is sought to be re-agitated or re-litigated. Then is issue estoppel, decided issue estoppel, where the issue is sought to be re-agitated, which has been raised and undecided as a fundamental step in arriving at a judicial decision. Third is extended as a res judicata or an unraised issue estoppel, where the issue sought to be re-agitated could be or should have been raised in a previous action but was not raised. And the last is the further extension of the point is to the point not raised in the relation to an issue in an earlier decision as opposed to the issue not raised in relation to the decision itself. तो बेसिकली ये मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अर्नॉल्ड वर्सेस नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक में 4 सिचुएशंस की और क्या बात की कि जिससे आप बार कर सकते हैं प्रोसीडिंग। ये इन एसेंस तो कॉज ऑफ एक्शन और इश्यू एस्टॉपल तो मैंने आपको समझा दिया। कॉज ऑफ एक्शन एस्टॉपल और इश्यू एस्टॉपल, ऑट्रोफाइज एक्विट भी आपको समझ में आ गई। ये सेम फैक्ट्स पे बार क्या कहते हैं ट्रायल नहीं हो सकता, सेम ऑफेंस पे और सेम फैक्ट्स पे री ट्रायल नहीं हो सकता अगर एक बार वो ऑलरेडी हेल्ड हो चुका है। बट अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन बोलता है कि भाई आप तो उन्हीं गिवन फैक्ट्स पे उसको क्या कहते हैं किसी और ऑफेंस के लिए भी कन्विक्ट कर सकते थे पर आपने नहीं किया, तो एक री ट्रायल करते हैं उसी बात पे जिन ऑफेंसेस पे आप उसे कन्विक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 300 का सबसेक्शन 1 उस पोजीशन से डील कर लेता है वेयर इट इज डाउटफुल that how many offenses have been committed and the facts can prove either of those offenses. तो जज ने अगर एक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया और बाकियों के लिए नहीं कन्विक्ट किया तो देन री ट्रायल कैन नॉट बी हैड। अगर सेम ट्रांजैक्शन की बात है, सेक्शन 220 ऑफ द सीआरपीसी में वो चार्ज फ्रेम हो सकता था पर नहीं फ्रेम हुआ और उस पर ट्रायल नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें लेजिस्लेचर ने मेजॉरिटी में ही डील कर ली हैं। तो it has been dealt with nicely by the legislature. प्राइमरली आपको बेयर एक्ट याद करनी है अगर आप एग्जाम में क्या कहते हैं लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप केस लॉ लिखिए, उसके बाद आप नुआंस लिखिए, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द बेयर एक्ट। और बेयर एक्ट आपको समझाने का काम मैं वही कर रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द बेयर एक्ट इटसेल्फ। तो कुछ इलस्ट्रेटिव केस देखते हैं। ट्रायल बहुत एसेंशियल है, मैंने आपको बोला था ना। तो ये जो केस है असिस्टेंट कलेक्टर वर्सेस एलआर मेलवानी, ये ट्रायल पे ही है। ये बताता है इसमें क्या हुआ था कि रिस्पोंडेंट्स जो थे जिन्होंने जो प्रोसिक्यूशन के थे वो आए थे और उन्होंने ये बात बोली कि द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एलिजेड स्मगलिंग वाज बार्ड बिकॉज प्रोसीडिंग्स वर अर्लियर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम इन कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। They were
executed against them before the collector of custom. Custom acts के अंदर उनके खिलाफ ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स हो गई थी और कलेक्टर ऑफ कस्टम्स ने उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स ली थी, तो हेंस सेम रीट्रायल नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के सामने जो भी प्रोसीडिंग होती है वो ना प्रोसिक्यूशन होता है, ना एडजुडिकेशन होता है, और ना ही कलेक्टर ऑफ कस्टम कोर्ट है. तो नाइदर द रूल ऑफ एट्रोफाइस एक्विट लग सकता है, नाइदर इश्यू एस्टॉपल लग सकता है, और नाइदर डबल जियोपैटी का रूल लग सकता है. ऑलराइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी कि भाई कोर्ट होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, और उसके बाद ही तो बाकी चीजें देखी जाएंगी कि सेम फैक्ट था, फाइंडिंग हुई थी या नहीं, एट्रोफाइस एक्विट लगा है या नहीं. इस केस में तो कलेक्टर ऑफ कस्टम ना कोर्ट है, ना उसके सामने की प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूशन है, ना ट्रायल है, तो हाउ कैन यू से कि प्रोसिक्यूशन बार्ड है. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. तो मैं आपको केस लॉ से एग्जांपल देना ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि आप ये कहीं साइट कर सकते हैं. ठीक है, फिर वो जो सिंपल एग्जांपल्स होते हैं वो मैं आपको ऐसे खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूं, ऐसे आप वो और अच्छे से समझ पाए. और अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा क्रिमिनल ट्रायल में भी एप्लीकेबल होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं. ये किस में हुआ हेल्ड? भगत राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में. इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज आल्सो एप्लीकेबल टू criminal proceedings and it is not permissible in a subsequent stage of the same proceedings to convict a person for an offence in respect of an order of his acquittal which has already been recorded. तो atrofis acquit को काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने उससे कंपेयर किया रेस जुडिकाटा से. हालांकि रूल्स डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रूल्स दोनों डिफरेंट है, पर इफेक्ट इनका सेम है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसको कंपेयर कर रहा है. और इसमें जो रेशियो था वो सांबा शिवम वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेडरल ऑफ मलया का डिक्टम अप्रूव हुआ था. उसमें क्या कहते हैं, लॉर्ड मैकडरमॉन्ट ने बोला था द मैक्सिमम ऑफ रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटाटे एक्सेप्टर इज नो लेस एप्लीकेबल टू अ क्रिमिनल ट्रायल देन टू अ सिविल प्रोसीडिंग. हेयर उस केस की बात कर रहा है सांबा शिवम वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की. हेयर the appellant having been acquitted at the first trial on the charge of having ammunition in his possession, the prosecution was bound to accept the correctness of that verdict and was precluded from taking any steps to challenge it at the second trial. तो सेम चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते सेकेंड ट्रायल पे, मतलब रीलिटिगेशन नहीं कर सकते. एक्चुअली इंग्लिश जजेस के जो जजमेंट होते हैं, दे यूज फ्लोरिडिटी अ लॉट, दे यूज euphemisms, they use metaphors to explain their point. So to understand them first you need to have a very good knowledge of Victorian English. So that way I simplify it for you. कभी हिंदी में इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि जिससे आपके पॉइंट आराम से समझ में आए, क्योंकि इनकी फ्लोरिडिटी से कभी कभी ये भी हो सकता है कि जिसको जो नया नया सीख रहा है उसको शायद वो पॉइंट ही ना समझ में आए, ही टोटली मिसेस द पॉइंट. सो फॉर एन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 300 अ ट्रायल इज नेसेसरी. ट्रायल बहुत नेसेसरी है. ये पॉइंट भी किसमें हेल्ड हुआ था, एक और आपको इलस्ट्रेशन दे देता हूं इस पॉइंट पे. आंध्र प्रदेश वर्सेस कोकीलीगाड़ा मरयाना एंड अनदर, ये आंध्र प्रदेश का केस था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर सिर्फ इंक्वायरी हुई है और ट्रायल नहीं हुआ है और इंक्वायरी में कोई भी इशू डिसाइड हो गया है, लेट अस सपोज कि किसी भी इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट ने बोला कि ये एविडेंस रिलायबल नहीं है, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान नहीं, कमिटल प्रोसीडिंग से पहले आपको पता है कि एक बार इंक्वायरी होती है कि मैजिस्ट्रेट देखता है कि अच्छा कोर्ट ऑफ सेशन का केस बन रहा है तो कमिटल प्रोसीडिंग्स होती हैं. तो उसमें अगर उसने कोई एविडेंस देखा ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये केस ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन या नहीं, एंड इन दिस सिचुएशन अगर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड कर दी कि दिस एविडेंस इज नॉट रिलायबल, इट इज नॉट करेक्ट, तो आपको पता है कि ये स्टेज ट्रायल नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही इस बात पे बोला था कि अगर मान लीजिए इंक्वायरी में कोई भी एविडेंस पे बात की गई है, क्योंकि वो ट्रायल पे एविडेंस मेजर नहीं हुआ है या उसकी क्रेडिबिलिटी डिटरमाइन नहीं हुई है, तो रूल ऑफ इश्यू एस्टॉपल इन केसेस पे नहीं लगता है, और रूल ऑफ इश्यू एस्टॉपल ट्रायल पे ही एप्लीकेबल है, वो इंक्वायरीज पे नहीं एप्लीकेबल है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला कि the rule of issue estoppel cannot in our judgment be extended to prevent evidence which was given in a previous proceedings and which was held not sufficient to sustain the other for being used in the support of charge of an offence which the state seeks to make out.
the rule of issue estoppel prevents re-litigation of an issue which has been determined in a criminal trial between the state and the accused. If in respect of an offence arising out of transaction, a trial has taken place and the accused has been acquitted, then another trial in respect of the offence alleged to arise out of that transaction or a related transaction which requires the court to arrive at a conclusion inconsistent with the conclusion reached at the earlier trial is prohibited by the rule of issue estoppel. In present case there was no trial and no acquittal. Basically इस केस में क्या हुआ था, मैं वही आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैजिस्ट्रेट ने एक इंक्वायरी होल्ड की और एक व्यू बनाया कि जो एविडेंस जो भी प्रोसिक्यूशन ने दिया है वो रिलायबल नहीं है. सब्सिक्वेंटली जो आगे की जो प्रोसीडिंग हुई, जब ट्रायल हुआ तो ट्रायल में कन्विक्ट कर दिया उनको. तो हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया था, हाई कोर्ट ने बोला कि इशू एस्टॉपल पे बार कर देना चाहिए क्योंकि प्रीवियस प्रोसीडिंग में मैजिस्ट्रेट ने ये इशू इंक्वायरी के दौरान लिया था कि वो रिलायबल नहीं है और क्योंकि एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट उसने रिकॉर्ड कर ली है तो इशू एस्टॉपल लग गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेम प्रोसीडिंग पे इशू एस्टॉपल नहीं लगता, सेम ट्रायल पे तो इट इज वेरी, सेम प्रोसीडिंग्स में तो इट इज वेरी ओपन फॉर यू टू प्रूव और डिसप्रूव अ फाइंडिंग और फैक्ट. लेकिन एक बार ट्रायल हो गया, जजमेंट आ गया, तो फिर दोबारा नया केस प्रेजेंट करके उसी फाइंडिंग ऑफ फैक्ट को डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है. तभी मैंने आपको कभी इंक्वायरी का एग्जांपल नहीं दिया. मैंने बेसिकली आपको बताया इट इज ऑलवेज ऑन द सेम फैक्ट्स और सेम इशू पे जब अगला ट्रायल हो रहा होगा नए केस पे, न्यू ट्रायल इज गोइंग ऑन और प्रीवियस ट्रायल हो चुका है ऑन द सेम फाइंडिंग ऑफ फैक्ट, तो सेम फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स को रीएजिटेट नहीं किया जा सकता जिसपे प्रीवियस ट्रायल में ऑलरेडी कंक्लूजन आ चुका है. वो वैसे ही रहेंगी, वो सैंक्रोसेंट रहेंगी, प्रोवाइडेड वो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ, सेम फैक्ट्स की बात की गई हो. अब इसका मतलब ये भी मत समझ लीजिएगा कि अगर एक ट्रांजैक्शन में कोई बात हुई है, मान लीजिए कि इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एक केस में प्रूव हुआ और मर्डर केस था और आर्म्स एक्ट का भी केस था, उस केस में इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स की बात हुई और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ एक फाइंडिंग आ गई कि इलीगल पोजेशन नहीं था. तो आर्म्स एक्ट का जो केस हो रहा था उसमें तो फाइंडिंग रेलेवेंट होगी, पर मान लीजिए उसी आर्म से उसने इन ट्रांजैक्शंस के बाद एक नया मर्डर कमिट कर दिया, एक नया मर्डर उसने कमिट कर दिया एक नए आर्म से विद अ न्यू आर्म. तो न्यू आर्म क्या होगा, न्यू आर्म, आई एम यूजिंग आर्म इन अ लीगल सेंस, इट विल बी अ गन. सो लेट अस सपोज ही कॉज डेथ विद अ न्यू गन. तो ये नए फैक्ट्स हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा कि नए फैक्ट्स पे अगर अलग गन से अलग अलग नए फैक्ट से मर्ज कर रहे हैं तो प्रीवियस फैक्ट्स उसे बार कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस फैक्ट्स जो भी हैं वो अपने प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के लिए रेलेवेंट रहेंगे, वो नए ट्रांजैक्शंस के लिए रेलेवेंट नहीं रहेंगे. तो अगर नई गन से नए आर्म से एक अलग मर्डर हुआ है और फिर उस पे एक नया प्रोसिक्यूशन हो रहा है डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर, उससे कोई रिलेशन नहीं है पिछले प्रोसिक्यूशन से, तो उस नए आर्म्स की फाइंडिंग ऑफ फैक्ट इज रेलेवेंट, तब वो रेलेवेंट हो जाएगी. हाँ, पिछले केस में क्या हुआ था जो इलस्ट्रेशन दिया था उसमें क्या रेलेवेंट नहीं होगा. कब इश्यू एस्टॉपल लग जाएगा, जब एक ही आर्म से मर्डर किया गया है और दो ट्रायल हो रहे हैं, दो नए केस बने हैं और उनपे दो अलग अलग ट्रायल होता है. मान लीजिए एक आर्म्स एक्ट में, एक मर्डर केस में. तो मर्डर केस में एक गन एग्जिबिट में प्रोड्यूस की जाती है और बोला जाता है कि ये आर्म इलीगल है, दिस पोजेशन ऑफ दिस आर्म इज इलीगल. जज देखता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, एविडेंस सारा देखने के बाद कि नहीं दिस आर्म इज नॉट इलीगल, ये लाइसेंस्ड आर्म था. तो फिर उसी फैक्ट्स पे जो मर्डर ट्रायल हो रहा है उस पे वो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जो है उसके लिए रेलेवेंट हो जाएगी. लेकिन अगर नई गन से मर्डर कर दिया गया है तो उस नई गन के लिए वो फैक्ट रिलेवेंट नहीं रहेगा. ये पॉइंट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि अब ऐसी कोई फाइंडिंग ऑफ फैक्ट कभी आ ही नहीं सकती. वो सेम फाइंडिंग ऑफ फैक्ट के लिए रिलेवेंट होती है. किसी नए इशू जो सब्सिक्वेंट न्यू ट्रांजैक्शन से जो राइज होते हैं तो उनके जो न्यू इश्यूज हैं उनके अपने फैक्ट्स होंगे और वो अपने एविडेंस पे डिटरमाइन होंगे. ठीक है, तो इसमें हमेशा डिफरेंस पे ध्यान रखिएगा कि इश्यू एस्टॉपल प्रिवेंट्स रीलिटिगेशन ऑफ एन इशू व्हिच हैज बीन डिटरमाइंड इन अ क्रिमिनल ट्रायल बिटवीन द स्टेट एंड द अक्यूज्ड इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अराइजिंग out of a transaction a trial has been taken place and the accused has been acquitted,
then another trial in respect of the same offence alleged to arise out of that transaction or a related transaction, which requires the court to arrive at a conclusion inconsistent with the conclusion that has been reached at the earlier trial, is prohibited by the rule of issue estoppel. ये बात ध्यान में रखिएगा. तो इस केस में क्योंकि कन्विक्शन हुआ था और क्योंकि ट्रायल नहीं हुआ था, जिस बेसिस पे हाई कोर्ट ने वो मान लिया कि मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी पे जो फाइंडिंग रिकॉर्ड की वो क्या कहते हैं इश्यू एस्टॉपल से बार्ड है, तो ट्रायल पे वो रेलेवेंट नहीं होगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ना ट्रायल हुआ था ना वो अक्विट हुआ था, वो रादर कन्विक्ट हुआ था, और जो फाइंडिंग मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड की वो इंक्वायरी के दौरान की थी. सो इट वाज इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ द रूल ऑफ इश्यू एस्टॉपल. यही सुप्रीम कोर्ट ने बताया था. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट केस लॉ कि अगर प्रोसिक्यूशन इस बात पे सेट असाइड हो गया है कि सैंक्शन नहीं थी तो रीट्रायल बार्ड नहीं है. समझ लीजिएगा कि अगर सैंक्शन नहीं थी तो उन्हीं फैक्ट्स को ट्राई किया गया, फिर बाद में ट्रायल को स्टॉप कर दिया गया या हाई कोर्ट ने ट्रायल क्वाश कर दिया, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा वापस सैंक्शन मिल गए ना तो रीट्रायल बार्ड नहीं है. इसको बैजनाथ प्रसाद त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ भोपाल में डील किया गया था. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है. इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट द फर्स्ट ट्रायल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि फर्स्ट ट्रायल शुड हैव बीन बिफोर अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू हियर एंड डिटरमाइन द केस एंड रिकॉर्ड अ verdict of conviction or acquittal. If the court was not so competent, as for example where the required sanction for prosecution was not obtained, it is irrelevant that it was the court was competent to try any other case for the same class or indeed the case as against the particular accused in different circumstances, because if sanction has not been obtained and let us suppose it is later obtained, then in those situations retrial is not at all barred. ठीक है. So और जहां पे वैलिड सैंक्शन नहीं है वहां पे कोर्ट को इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई माना जाएगा. अगर किसी केस पे वैलिड सैंक्शन नहीं है देन यू नो कि देयर इज अ बार टू टेक कॉग्निजेंस, एंड इफ देयर इज अ बार टू टेक कॉग्निजेंस then the magistrate or the judge concerned is not at all capable of trying the case. तो उसमें कॉम्पिटेंसी का इश्यू हुआ है. आप इसको बुलेट पॉइंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे इतना बड़ा पैराग्राफ है, यू कैन टोटली रिलेट टू 2 वर्ड्स. सिर्फ 2 वर्ड्स आपको ध्यान में देने. कॉम्पिटेंसी, लैक ऑफ वांट ऑफ सैंक्शन क्या है? लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट. तो हमेशा ये जितने भी बड़े बड़े पैराग्राफ हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो बेयर एक्ट के कुछ वर्ड्स इसको डील कर सकते हैं. आपको समझना है बस. एक बार आपने समझ लिया एवरीथिंग बिकम्स इजी. And CRPC out of all the procedures, CPC भी अभी आएगा, it is the toughest one. अभी आप सोच लीजिए CPC में ऐसा इतना complexity नहीं है. CPC is very straightforward. When I will deal with all the nuances that are there in CPC, जितने हैं उसमें सारे के सारे से I will deal. But it is easier to understand. CRPC में it is difficult to understand. Now I come to the next case law. That was Amritlal Ratilal Mehta versus State of Gujarat. The question about binding force of a finding at earlier stage would depend on the question as to what allegations were, what facts were required to be proved, and what findings were arrived at. The question thus is not whether the ingredients of the 2 offences are the same merely, but whether the facts alleged and required to be proved in a particular case and in order to establish a particular offense are basically the same. तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा. मैं सेक्शन 300 के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ. दिस इज रिलेशन टू सेक्शन 300, लेकिन लॉ थोड़ा इफेक्ट हुआ है. अमृतलाल की जजमेंट के बाद से लॉ हैज बीन चेंज्ड, और अब जो है जब आप सेक्शन 300 ऑफ द CRPC और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो मैं एक कन्विक्शन वाले इश्यू की बात करता हूँ. अब मान लीजिए कि अक्यूज्ड अक्विट हो गया है, या सॉरी मान लीजिए अक्यूज्ड कन्विक्ट हो गया है, तो ऐसे केस में आर्टिकल 22 भी लगता है. 22 मतलब 20 क्लॉज 2 की बात कर रहा हूँ, नॉट आर्टिकल 22. आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की बात कर रहा हूँ, रेड विथ सेक्शन 300 ऑफ द CRPC. तो क्या अगर वही फैक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑफेंस बना रहे हो तो ट्रायल हो सकता है? नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सुप्रीम कोर्ट ने
कुछ बातें बोली हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो मैक्सिम्स हैं जिन पे सेक्शन बेस्ड है वो क्या है। Nemo debet bis funere pro uno delicto, no man should be punished twice for the same offence. Then nemo debet bis vexari pro una ad idem causa, no man should be vexed twice for the same cause. तो मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू से डील किया था, जहां पे अ पर्सन इंडियन एयरपोर्ट में आया फ्रॉम अब्रोड, और जब उसको सर्च किया गया देन ही वाज फाउंड इन पोजेशन ऑफ गोल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेलेवेंट नोटिफिकेशन, जिसके बेसिस पे इंपोर्ट ऑफ गोल्ड प्रोहिबिटेड था। तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ। कस्टम अथॉरिटीज ने गोल्ड सीज किया उसकी पोजीशन से और गोल्ड को कन्फिस्केट कर लिया। उसके बाद एक प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ लॉन्च किया गया, और जब प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ लॉन्च किया गया तो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ बॉम्बे में लॉन्च किया गया, और चार्ज ये था कि ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 फेरा एक्ट में, और इट हैज टू बी रेड विद रेलेवेंट नोटिफिकेशन। तो इन बैकग्राउंड्स में प्ली ऑफ एट्रोफाइस अक्विट रेज की गई थी फॉर सीकिंग प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 300 उस कोड में देन, एंड आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पाया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट व्हिच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 enunciates that the principle of atrofis convict or double jeopardy, that is a person must not be put in peril twice for the same offense, वो उन्हीं मैक्सिम्स पे है जो मैंने अभी आपको बताया। The plea of atrofis convict or atrofis acquit avers that a person has been previously convicted or acquitted on a charge for the same offense as that in respect of which he is arraigned. The test is whether the former offense and the offense now charged have the same ingredients. ये बात बोली है कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टेस्ट इज वेदर द फॉर्मर ऑफेंस एंड द वन दैट इज सॉट टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट हिम हैव द सेम इंग्रेडिएंट्स और नॉट। अ प्ली ऑफ atrofis acquit is not proved unless it is shown that the verdict of acquittal of previous charge necessarily involves acquittal in the latter. तो बेसिकली जो टेस्ट है आपका क्या है कि जो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट सेम होने चाहिए, ऑफेंस के फैक्ट सेम होने चाहिए, तब तो हो सकता है कि और ट्रायल होना चाहिए और कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो उस बेसिस पे तो फिर बार लग जाएगा सेक्शन 300 का, रेड विद आर्टिकल 20 क्लॉज 2। लेकिन अगर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट ही डिस्टिंक्ट है, ऑफेंस एकदम अलग है, दूसरे ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है, देन द बार कैन नॉट अप्लाई। और इंग्रेडिएंट्स अगर एकदम ही अलग हैं देन अगेन द बार कैन नॉट अप्लाई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इन एसके वेंकटा रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डॉक्ट्रिन का आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 का भी स्कोप बताया था। ये बोला था कि इस प्रोविजन को अट्रैक्ट करने के लिए person must have been both prosecuted and punished in respect of the same offense. Prosecution होना चाहिए, punish होना चाहिए for the same offense. The words prosecuted and punished are to be taken not distributively as to mean prosecuted or punished. Prosecuted और punished की बात नहीं करेंगे, prosecuted and punished, ये दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट होनी चाहिए to get the benefit of article 20 clause 2. तभी मैंने इसको बोला था थोड़ा डिस्टिंक्ट है सेक्शन 300 से और इश्यू एस्टॉपल से। डू नॉट कंफ्यूज ऑल ऑफ देम, हालांकि एक टैंडम में एक साथ काम करते हैं। तो एक आपको इलस्ट्रेशन देता हूं कि कब सेकंड प्रोसिक्यूशन बार हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सामने का केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एसएल आप्टे का। इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि टू ऑपरेट एज अ बार the second prosecution and consequent punishment thereunder for the same offense, the crucial requirement is for the attracting article 20 clause 2 is that the offenses should be the same, that is they should be identical. Agar two offenses are distinct, then notwithstanding that the allegations of fact in the two complaints might be substantially similar, the benefit of the ban cannot be invoked. अगर दो complaints तब भी similar हैं दिखने में, लेकिन ऑफेंस उससे सेम नहीं बन रहे, ना ही इन दूसरी सिचुएशन में ना ही ऑफेंस सेम बन रहे, ना ही जो ट्रायल होना है उसकी सिचुएशन वो डिफरेंट है, या ट्रायल पिछली सिचुएशन में हुआ ही नहीं है,
तो ऐसे केस में यू कैन नॉट हैव अ बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2. तो इसके लिए इट इज नेसेसरी टू एनालाइज एंड कंपेयर not the allegations in the two complaints but the ingredients of the two offenses and see whether there is identity of the two offenses being made out. अगर offense distinct है, एकदम अलग है, तो आर्टिकल 20 का बैन नहीं अप्लाई करेगा. ठीक है. एंड इट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इज टू बी रेड विद सेक्शन 300 ऑफ द CRPC. तो इसमें क्या हुआ था कि आपको एक केस बताता हूँ, 2003 में हुआ. इसमें कस्टम ड्यूटीज को वो इवेट करने के लिए एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉज हुआ था. उसके बाद पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन बनाया, कर विवाद समाधान स्कीम, और उसमें जो था अक्यूज्ड उसने अपना क्या कहते हैं टैक्स भर दिया विद द एक्सेस पेनल्टी, और फिर उसने कहा कि यार प्रोसिक्यूशन अब हटे आना चाहिए, पर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉज हो गया फिर से फॉर इवेटिंग द कस्टम ड्यूटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने हीरालाल वर्सेस CBI में बोला कि once a tax matter was settled under this legislation of the scheme of this legislation, offense compound हो गया और prosecution for evasion of duty would amount to double jeopardy. उस केस में बोला कि भाई ये compound हो चुका है, तो दोबारा अब इस situations में इस पे retrial नहीं हो सकता. In this case it will amount to double jeopardy. All right. तो आपको क्या ध्यान रखना है? बेसिकली आपका प्राइमरली ये सिचुएशन डेल्ट विद हो चुका है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि डबल जियोपर्डी 300 पे क्या डिफरेंस है, इश्यू एस्टॉपल में क्या डिफरेंस है. तो प्राइमरली जो आपको समझना था वो 300 था, वो आप समझ ही चुके हैं कि आइडेंटिटी ऑफ फैक्ट्स, आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंसेस, जजमेंट और अक्विटल, द अक्विटल या कन्विक्शन का जजमेंट फोर्स में रिमेन करना चाहिए, अपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट को उसको सेट असाइड नहीं करना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, ट्रायल एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा होना चाहिए. दीज आर दी एसेंशियल कंसिडरेशंस जो सेक्शन 300 के लिए बहुत रेलेवेंट है, और फिर सेक्शन 300 ने कुछ एक्सेप्शन भी बनाए हैं, है ना. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आप उसमें जाएंगे तो यू विल ऑलवेज कीप दिस फैक्ट्स इन माइंड. ये आपको प्राइमरली एग्जाम में लिखना है, यही आपको हाईएस्ट नंबर दिलवाएगा. उसके बाद यू मेंशन दीज केस लॉ. ये केस लॉ मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे तो यू हैव टू आर्ग्यू इट. और अगर थ्योरेटिकल स्टेट से मूव ऑफ करके दिल्ली वैली में आप एग्जाम देना चाहते हैं, देन आपको तो ये केस लॉज मेंशन ही करने पड़ेंगे, क्योंकि दे विल गिव यू अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ इन फैक्ट्स को मिक्स कर देगा दिल्ली जुडिशियल सर्विस, और आपसे सीधे सवाल पूछ लेगा. सो अनलेस यू नो ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस, आप कभी दिल्ली जुडिशियल सर्विस के पेपर से डील नहीं कर पाएंगे. दैट इज व्हाई यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स एग्जॉस्टिवली. पूरा डील करना है, बिकॉज व्हेन यू आर टोटली अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ इट, आप सब समझ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डील विद दिस क्वेश्चन इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस ऑल्सो. अब आपको मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशंस दूंगा. कुछ मैंने आपके लिए बहुत सारे केस कलेक्ट किए हैं इस पॉइंट पे, कि आपको जिससे काफ़ी इलस्ट्रेशन की मदद से जितने भी पॉइंट क्लियर हो सके मैं करने की कोशिश करूँगा. और अगर आपके नहीं क्लियर होते हैं देन यू आर ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी. आपको पता है कि हमारा लाइव सेशन होता है वहाँ व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड एंड वी कैन ऑलवेज डील विद दैट. तो एक केस हुआ था VK अग्रवाल वर्सेस वसंतराज में. इसमें क्या हुआ था, अक्यूज्ड को कस्टम एक्ट में प्रोसिक्यूट किया गया था और गोल्ड कंट्रोल एक्ट में प्रोसिक्यूट किया गया था. तो उसने बोला कि क्योंकि मुझे कस्टम एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जा चुका है तो फिर मुझे दोबारा गोल्ड कंट्रोल एक्ट में प्रोसिक्यूट ना किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंग्रेडिएंट्स ऑफ टू ऑफेंसेस आर डिफरेंट इन स्कोप एंड कंटेंट. तो जो फैक्ट्स, जो ऑफेंस कस्टम एक्ट में जो प्रूव होते हैं वो अलग हैं, और उसमें जो भी आपका कन्विक्शन, जो भी जस्टिफाई हुआ है कन्विक्शन, तो वो गोल्ड एक्ट के पर्पस के लिए रिलेवेंट नहीं है. तो क्योंकि वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स एंड स्कोप ऑफ टू ऑफेंसेस आर डिफरेंट, तो उस केस में आपका डबल जियोपर्डी और सेक्शन 300 का बार नहीं अप्लाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी बोला कि इसके लिए नेसेसरी है टू एनालाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टू ऑफेंसेस एंड नॉट द एलिगेशंस मेड इन द कंप्लेंट. कंप्लेंट हो सकता है भले एक फैक्ट में सेम हो, पर एक फैक्ट में कई ऑफेंसेस बन रहे हैं, तो अलग अलग एक्ट्स में बन रहे हो सकता है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट IPC के लिए भी रेलेवेंट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए भी रेलेवेंट है. तो इसमें कई चीज़ें सिचुएशन अराइज कर सकती हैं जिसमें फर्दर ट्रायल शायद बार ना हो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए.
तो वीके अग्रवाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली बोल लिया था कि क्योंकि कस्टम्स एक्ट के मैटर अलग होते हैं, उनके ऑफेंसेस अलग हैं, और गोल्ड कंट्रोल एक्ट के इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंसेस अलग हैं, हालांकि वो सेम फैक्ट्स पर ट्राई हो सकता है, तो सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन बार्ड नहीं है। तो इवन दो यू हैव सफर्ड अ कन्विक्शन अंडर कस्टम्स एक्ट, आप ये नहीं कह सकते आप सेम फैक्ट पे मुझे गोल्ड कंट्रोल एक्ट में कन्विक्शन कर रहे हैं तो सेक्शन 300 रेड आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि no, it is not merely necessary to see the allegations made in two complaints are the same or not, it is necessary to analyze the ingredients and scope of the two offences. Next in line आता है PV मोहम्मद वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इसमें कंटेंशन था कि सी कस्टम्स एक्ट फॉर द सेल्फ सी कस्टम्स एक्ट का वायलेशन हुआ था और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो थी वो अक्यूज्ड के फेवर में टर्मिनेट हुई, मतलब ये इसमें जो जजमेंट सी कस्टम्स एक्ट में जो भी प्रोसीडिंग हुई थी वो अक्यूज्ड के फेवर में खत्म हुई। उसके बाद उसको फेरा एक्ट में प्रोसिक्यूट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मियर फैक्ट दैट द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स फॉर इवेजन ऑफ द एक्साइज ड्यूटी हैज एंडेड इन द फेवर ऑफ द अपेलेंट अंडर सी कस्टम्स एक्ट डज नॉट टेक द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अथॉरिटीज under the act to impose penalty under FERA Act. The doctrine of double jeopardy in this case has no application. फिर एक केस है लियो रॉय फ्रे वर्सेस सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अमृतसर। इसमें क्या हुआ था, प्रोसीडिंग्स वर फर्स्ट टेकन अंडर कस्टम अथॉरिटीज एक्ट अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 8 ऑफ द सी कस्टम्स एक्ट और कई पेनल्टी इंपोज की गई अक्यूज्ड पे। उसके बाद द अक्यूज्ड पर्सन्स वर अगेन चार्ज्ड अंडर सेक्शन 120B ऑफ द आईपीसी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी। तो कोर्ट हेल्ड इन दिस केस that the offence under section 120B is not the same offence under the Sea Customs Act. The offence of conspiracy to commit a crime is a different offence from the crime that is the object of conspiracy, because conspiracy precedes the commission of the crime and is complete before the crime is attempted or completed. Equally, the crime attempted or completed does not require the element of conspiracy as one of its ingredients. They are therefore quite distinct and separate offences. Hence again, the bar does not apply. फिर A. मुल्ला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 1997 का केस है। दी अपेलेंट्स वर चार्ज्ड अंडर 409 आईपीसी। 409 आईपीसी वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय बैंकर, पब्लिक सर्वेंट, लॉयर, अटर्नी ऑफ द हाई कोर्ट एक्सेट्रा पे अप्लाई करता है। एंड सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फॉर मेकिंग फॉल्स पंचनामा डिस्क्लोजिंग द रिकवरी ऑफ 90 गोल्ड बिस्किट्स ऑन 21/9/1969। Although the recording to the prosecution case, इसमें जो पहली प्रोसीडिंग हुई थी उसमें प्रोसिक्यूशन केस में 99 गोल्ड बिस्किट इनसे रिकवर हुए थे। अपेलेंट्स को ट्राई किया गया था और उसके बाद अपेलेंट्स सेक्शन 409 में और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अक्विट हो गए थे। अपेलेंट्स वर ऑल्सो ट्राइड फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 120B ऑफ द आईपीसी और सेक्शन 135 एंड 136 ऑफ द कस्टम्स एक्ट और सेक्शन 85 ऑफ द गोल्ड कंट्रोल एक्ट में ट्राई हुए थे और सेक्शन 23 ऑफ द फेरा एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 में फिर इनका ट्रायल हुआ। द अपेलेंट फाइल्ड इन लोगों ने फिर एक एप्लीकेशन फाइल की बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट contending that the same facts could not be tried again for the second time in view of section 403 of the CRPC। जो 403 of the CRPC 1898 कोर्ट का जो है वो सेक्शन 300 ऑफ द CRPC 1973 का है। तो ये सेम फैक्ट्स इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर आवर पर्पस यू विल रीड एट सेक्शन 300 CRPC। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात कही थी, बोला after giving careful considerations to the facts and circumstances of the case and the submissions made by the learned counsels for the respective parties, it appears to us that the ingredients of the offence for which the appellants were charged in the first trial are entirely different. The second trial, which we are concerned in this appeal, envisages a different fact situation, and the inquiry for finding out the facts constituted under Customs Act and the Gold Act in the second trial is of different nature. Not only that, the ingredients of the offences in the previous and the second trial are also different. The factual foundation of the first and
factual foundation of the second trial are also not identical. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि second trial is not barred. Then यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुनील कुमार सरकार, ये 2001 का केस है. मैं आपको सारा होलिस्टिकली इसलिए बता के आ रहा हूँ जिससे मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के इंसेप्शन से लेके अभी तक का पूरा पॉइंट डील के ले रहा हूँ. वैसे मैंने आपके लिए पूरे केस लॉ तैयार कर रखे हैं, बट आई थिंक दिस लास्ट केस लॉ विल प्रूव द पॉइंट. और भी सारे हैं, बट दो और मैं केस पढ़ता हूँ आपके लिए. कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुनील कुमार सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया कि अगर कोर्ट मार्शल में पनिशमेंट हो चुका है तो क्या दोबारा, तो अगर सेंट्रल रूल्स में डिसिप्लिनरी इंक्वायरी उसके खिलाफ होने लगे या मिसकंडक्ट उसमें इंक्वायरी होने लगे तो क्या वो डबल जेओपर्डी को वायलेट करेगा. तो कोर्ट ने बोला कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स पैनल एस्पेक्ट से डील करती है मिसकंडक्ट के, वाइल सेंट्रल रूल डील विद द डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ द मिसकंडक्ट. ये दोनों प्रोसीडिंग्स डू नॉट ओवरलैप और यहाँ पे भी डबल जेओपर्डी का कोई रेलेवेंस नहीं है. तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हट सिंह एक और केस मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. ये 2003 का है. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऑफेंस ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती अंडर सेक्शन 5 ऑफ राजस्थान सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 डिफरेंट है फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ वायलेटिंग अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 6 thereof. So the doctrine of double jeopardy was not retracted for the reason that even if the prohibitory order is promulgated, a subsequent criminal act, even if it falls within the subsection 5, could not be covered under section 6, subsection 3 of the said act. Doctrine of double jeopardy is enshrined under Article 20, Clause 2 and Section 300 of the CRPC and Section 26 of the General Clauses Act. क्योंकि ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये सेम ऑफेंस को एम्प्लॉय करते हैं और वो प्रोहिबिट करते हैं अलग अलग लेवल पे उनका ट्रायल और उनका पनिशमेंट. आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 पनिशमेंट पार करेगा सेम प्रोसिक्यूशन पे अगर उस पर पनिशमेंट रिसीव कर चुका है. सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी ट्रायल पार कर देगा उस बात पे. तो ये सारे ना टैंडम में काम करते हैं. तो अगर आपको होलिस्टिक, मैं आपकी नॉलेज क्यों होलिस्टिकली प्रूव कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको सेक्शन 300, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये सारे टैंडम में समझने चाहिए और ये सारी एक ही बात करते हैं लेकिन अलग अलग स्फीयर्स में काम करते हैं. इसीलिए मैंने आपको इशू एस्टॉपल भी बता दिया. तो ये क्योंकि एक ही साथ काम करते हैं इसलिए मैंने इनको एक अलग से टॉपिक रखा, हौच पौच नहीं कर दिया वरना आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता. फिर नेक्स्ट इन लाइन क्या आता है कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बलवंत सिंह, ये भी 2003 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑफेंस की देयर मे बी केसेस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, डिफेमेशन which may give rise to the prosecution on criminal side and also for an offense and also for proceeding under civil code or for recovery of money by the way of damages. उस केस में भी आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 नहीं अप्लाई होता, वो डबल जेओपर्डी नहीं कहलाएगी. ऑलराइट, डबल जेओपर्डी और सेक्शन 300 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तक कन्फाइंड है और उसका सिविल लॉ में उसका एक्सटेंशन नहीं है डबल जेओपर्डी का. तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर एक साइड पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिफेमेशन की हो रही है, दूसरी साइड पे सिविल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस की हो रही है, ये सेम प्रोसीडिंग्स नहीं है. और बाकी मैंने आपके लिए और भी केस लॉस कलेक्ट करके रखे हैं. एक और मैं बता देता हूँ, ये सबसे लेटेस्ट है. ये डिसाइड तो हुआ था 2018 में. इस पर इसका क्रिमिनल अपील नंबर है कि मतलब जब लॉन्च किया गया था 2000 क्रिमिनल अपील नंबर है 645 और 2012. संगीता बहन महेंद्र भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द लॉ इज वेल सेटल्ड दैट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अट्रोफाइज एक्विट और सेक्शन 300 of the CRPC or section 71 of the IPC or section 26 of the General Clauses Act, the ingredient of the offence in earlier case as well as in the latter case must be same and not different. The test to ascertain whether the two offences is same or not is not the identity of the allegation but the identity of the ingredients of the offence. Motive for committing offence cannot be termed as the ingredient of offences to determine the issue. The plea of authorized acquit is not proved unless it is shown that the judgment of acquittal in the previous charge necessarily involves an acquittal of the latter charge. तो इसको उस कंडीशन से मत कंफ्यूज कर लीजिएगा जहाँ पे लेजिस्लेचर ने बोला है
कि 221 का भी जहाँ पे आपको लगता है डाउटफुल है कि इन सब का चार्ज बन सकता है, पर आपने ट्रायल नहीं किया तो उस पर ट्रायल नहीं हो सकता। तो वो 221 के डाउटफुल चार्जेस में जो कन्विक्शन का जो स्पेशल प्रोविजन 300 में क्रिएट किया है लेजिस्लेचर ने, उसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, वो अलग है, उसका रेलम अलग है। उसमें जब आपके सामने फैक्ट्स थे तो आपके पास 4, मान लीजिए आप थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और बाकी चीज़ों के लिए पनिशमेंट दे सकते थे, और आपको लग रहा है कि जो फैक्ट्स हैं उनमें दिख रहा है कि इनमें से कोई भी ऑफेंस बन सकता है, पर लेट अस सपोज आपने फैक्ट थेफ्ट का बनाया, सिर्फ उसी पे कन्विक्ट किया, तो ऐसे केस में चूंकि आपको खुद ही पता था कि इस पे ये सारे चार्ज बन सकते हैं और आपने नहीं बनाए, तो 221 में आप उसे कन्विक्ट कर सकते थे, फिर भी आपने नहीं किया, इसलिए बार है। लेकिन अगर ऑफेंस ही अलग है, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट अलग हैं, देन देन द सब्सिक्वेंट ट्रायल तब नहीं बार होता, ठीक है। तो 221 की सिचुएशन से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, जिस एक्ट ने जिसका रेलम जहां तक कन्फाइंड रखा है वहीं तक रखना है। तो अगर प्रोसिक्यूशन मान लीजिए 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हो रहा है, उसमें जो मेंस रिया रिक्वायर्ड है वो है फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ चेक, और अगर वो नहीं प्रूव हुई, लेट अस सपोज, तो सेम मेंस रिया तो सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी के लिए भी रेलेवेंट है, लेकिन 420 ऑफ द आईपीसी इज अ सीरियस ऑफेंस, उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या कहते हैं, एक तो प्रिजम्पशन अक्यूज्ड के खिलाफ होता है, और साथ में ये भी होता है कि कई प्रिजम्पशंस कोर्ट अज्यूम कर सकता है कि इट इज ओनली फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी जो चेक इशू किया गया। तो जो 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है चेक बाउंस के केसेस में, उसके इंग्रेडिएंट्स एकदम अलग है, और 420 ऑफ द आईपीसी एकदम अलग है, हालांकि ये सेम सेट ऑफ फैक्ट से अराइज करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिचुएशन में ये दोनों सेम ऑफेंसेस नहीं हैं, और इस पे सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी का भी बार नहीं लगता, और ना आर्टिकल 220 क्लॉज 2 का बार लगता है। कई कंडीशंस, कई मेंस रिया और फैक्ट्स ओवरलैप जरूर कर सकते हैं, पर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस आर इंटायरली डिफरेंट। तो देखिए, मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए। एक फेरा एक्ट का भी जजमेंट आपके लिए बताया है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में डील करता है, और उसमें कुछ गाइडलाइंस है कि क्या चीज़ अगर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं मानी जाएगी। आपको अगर इंटरेस्टेड लगे, आपको पढ़ने का मन लगे, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से रेलिवेंट नहीं है। नाउ दिस टॉपिक इज टोटली ओवर, और टुमारो विल स्टार्ट विद 362, और देन विल सी हाउ फार विल गो विद द सीआरपीसी। ठीक है, सो इट इज ओवर फॉर टुडे।